Good morning class. Today we are going to discuss our first chapter, that is end of bipolarity. In this video we will focus on what is bipolarity and how it is ended. Okay. So first we gonna discuss about bipolarity. What is bipolarity? Bipolarity means two poles, that is two superpowers that are made after the end of the World War II. That means after 1945, end of the World War II, there were only two superpowers in the world. That's why we have given the word bipolar. So these two superpowers are after the 1945 World War, US and USSR. The world is divided into two superpowers, that is US and USSR, and in this we are focusing on how the bipolarity ended, how the bipolarity in the world ended. So first we will gonna discuss what is superpower US and USSR. So as the second world war started in 1939, and the world is divided into two groups, that is Axis power and Allied power. Axis power and Allied power. Axis power is with, we can say, Germany, Japan and Italy. And in Allied power there are two powers. First of all, there are only two powers that are fighting this world war, that is France and England. And as the Japan attacked US in 1945 in the Pearl Harbor, US also joined the Allied power. At last, USSR also joined this Allied power. And uh, as the World War was going on in 1945, I mean to say August 1945, the war ended. The war ended because in 1945 Japan was attacked by US. The US dropped two atomic bomb, due to which Japan was devastated, and the World War ended in 1945. And these are these group, the Axis, lost the World War, and these two countries whose economy was shattered down by this World War, and they also said that we are too much poor and we have lost so much money in this World War. And these two superpower at the end of the World War II became the sole superpower of the world. And that's why these the concept of bipolar world came. In the bipolar world, we say there are only two superpowers that are in the world and that are managing the affairs of the world. We say that US and USSR. After 1945, as the Cold War started, and starting of the Cold War, these are the two superpowers. We can say NATO, that was made in 1949, and we have here Warsaw Pact, that was established in 1955, and NATO was capitalist bloc, capitalist, and Warsaw Pact, we can say socialist. And one of the thing that it is a group of 32 countries
countries and 12 founding members. First of all, 12 members joined this group, and this is of 8 countries. This is made by 8 countries. And if you want to learn more, the Brussels is the headquarter of NATO, and Poland, we can say Warsaw. As the name suggests, Warsaw. Warsaw is the headquarter of this group in Poland. So these two groups are managing the world affairs after 1945, and they are fighting the war of ideologies. So that is called bipolarity, when these two powers are fighting for their ideologies. Now we gonna focus on our chapter, that what is Soviet system. As after the Russian Revolution, when Tsar Nicholas II was defeated, and the Soviet system started in 1917, the Communist Party came into power in USSR. This party started as a highest party in this country, and one of the party, the single dominated party in the country. And as the socialist revolution started, after the socialist revolution started, they had one ideal, that is to focus on socialism. And due to this socialism, what they did in this, doing this thing, they oppose capitalism, and there is no place of private property in the country. And in doing so, when we can say that private property, they made a society on the equality basis, that everybody is equal and treated equally. Even an egalitarian society was made throughout the country. And in doing so, the makers of this socialism, the USSR, give primacy to the state. The state is the sole proprietor of the country, sole superpower in the country, and this state was controlling all the institutions in the country. The country's institution, that is the government was driven by the Communist Party. The Communist Party, the single ruled party, and state is controlling all the money making assets in the country. All the assets are controlled by the state, and state will give primacy to everything that they are controlling. And economy was even the economy was controlled by the state. Everything that state want can do. After the, as we have said, 1945, USSR turned out to be the superpower. After 1945, US liberated many countries from the fascist forces, and as these countries are liberated from fascists like Italy, Germany and Japan, these countries, as these East European countries are liberated from the fascist forces, they joined USSR and made second world, that we can say second world in the globe. And this second world is also known as Eastern Alliance, the group of 8 countries that are driving Eastern Alliance. And
This Eastern Alliance is a military alliance where if any country among these 8 countries is attacked, these 8 countries will together attack that country. तो 8 देश मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे और ये मिलिट्री अलायंस का एक ही काम होगा कि वो 8 देश मिलकर किसी भी जिस देश ने अटैक किया उस पर अटैक करेंगे। जैसे कि नाटो ने अगर अटैक किया तो 8 देश नाटो पर अटैक करेंगे। तो यूएसएसआर इस ब्लॉक का लीडर था, सेकंड वर्ल्ड का लीडर, सेकंड वर्ल्ड को चलाने वाला और एक सुपर पावर। अब जैसे कि हमने देखा कि यूएसएसआर एक सुपर पावर थी, यूएस को टक्कर देने वाली, लेकिन यूएसएसआर कभी भी यूएस के बराबर नहीं रहा। वो कभी भी इससे पीछे चल रहा था हर चीज में। टेक्नोलॉजी की बात करें, आप डेवलपमेंट की बात करें, तो यूएसएसआर कभी भी यूएस को टक्कर नहीं दे पाया, उसके बराबर नहीं आ पाया, उससे आगे नहीं निकल पाया जैसा कि वो सोचते थे। तो इसलिए अब सोवियत यूनियन ने अपने आप को पूरे वर्ल्ड से डेवलप किया, पूरे वर्ल्ड से डेवलप किया, पूरे वर्ल्ड से ज्यादा डेवलप किया, लेकिन वो कभी भी यूएस के बराबर इक्वल टू यूएस नहीं हो पाए। वो हमेशा पीछे रहे, लैग बिहाइंड करते रहे। अब सोवियत इकोनॉमी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेवलप थी, तो इन्होंने एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इतना अच्छा बनाया ताकि ये हर रिमोटेस्ट पार्ट तक अपने आप को कनेक्ट कर पाए, ताकि इनको हर पार्ट तक जाने का मौका मिले, वो हर पार्ट तक जा पाए और उन्हें पहुंचने का मौका मिले। इवन इनके पास अपने खुद के एनर्जी रिसोर्सेस प्लस पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स भी इनके खुद के थे, तो ये अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट मानते थे। आयरन, स्टील सब कुछ इनका था, तो इसलिए इन्होंने मशीनरी में भी पिन से लेकर कार तक, पिन टू कार तक खुद प्रोड्यूस किया और अपनी डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री को खुद खड़ा किया। अब और क्वालिटी जो थी इनके, क्वालिटी, अगर क्वालिटी की बात करें, जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। अब क्वालिटी मैं कह दूं कि क्वालिटी ठीक ठाक थी, जो कभी भी यूएस को मैच नहीं कर पाई। इनकी क्वालिटी यूएस को कभी मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए हम कहते हैं कि यूएसएसआर ने हर चीज बनाई बट वो क्वालिटी में हमेशा लैग करते रहे। अब सोवियत यूनियन की बात करें तो इन्होंने अपने हर सिटीजन को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब हम कह दें जी रोटी, कपड़ा और मकान की मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर नागरिक को दी। हर नागरिक का ध्यान रखा कि उसे मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। अब इसमें हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, इवन सब्सिडाइज्ड गुड्स, इन्होंने हर चीज सब्सिडी पर भी अपने लोगों का ध्यान रखने के लिए इक्वालिटी, क्योंकि ये किस पर फोकस करते थे, सोवियत सिस्टम इक्वालिटी पर फोकस करता था सबसे ज्यादा। दे ट्रीट एवरीबडी इक्वल। एग्लिटेरियन सोसाइटी की बात हमने पहले की थी, तो सबको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दी और यह भी ध्यान रखा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम हो। फिर अब जो स्टेट ऑनरशिप थी, अब स्टेट ऑनरशिप की बात करते हैं,
स्टेट ऑनरशिप जो थी वो डोमिनेंट थी, मतलब स्टेट के पास सारे रेवेन्यू मेकिंग एसेट्स, जिन एसेट्स से सबसे ज्यादा मुनाफा होता है वो स्टेट के पास थे, स्टेट के हैंड में थे, वो स्टेट उनको कंट्रोल करता था और लोगों में प्रॉफिट जो था उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उनके लोगों को बराबरी में सब कुछ वितरण देना, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, यह भी इंश्योर किया गया। तो रेवेन्यू मेकिंग जो एसेट्स थे वो लोगों को बराबरी से, लोगों का ख्याल रखा गया, लोगों का ध्यान रखा गया स्टेट के द्वारा, और स्टेट लोगों की मिनिमम स्टैंडर्ड का भी ख्याल रखता था। तो स्टेट लोगों के लिए काम कर रहा था। अब क्या हुआ, सोवियत सिस्टम धीरे धीरे ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक मतलब अफसरशाही, मतलब अफसरशाही बहुत हावी होगी वहां। अफसर अपनी मर्जी से, जो ऑफिसर्स हैं अपनी मर्जी से, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, और इवन अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन भी हो गई। अथॉरिटी मतलब उनके पास खुद की सत्ता थी, तो खुद की अथॉरिटी के हिसाब से ये लोग ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे थे। तो सीधी सी बात ये होगी, लोगों को ये लगा कि अब हमारा गला घुट रहा है, अब हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो छीनी जा रही है। सो पीपल फाइंड दैट देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गॉन, अब उनके पास उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो उसी डिसेंट को, उसी गुस्से को, जो उनका डिसेंट था, उनका जो गुस्सा था, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उन्होंने सरकार को दिखाने के लिए सरकार के ऊपर जॉक्स क्रैक करने चालू किए, जॉक्स एंड कार्टून, सरकार के कार्टून बनाने चालू कर दिए अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को। जब उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्टिफल किया जा रहा था, उनका गला घोटा जा रहा था, उन्हें बोलने की हक नहीं दिया जा रहा था। ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशंस थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर थे, ज्यादातर जो इंस्टीट्यूशन थे वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर थे। तो सीधी सी बात है, कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से थी, काफी लंबा समय हो गया था, तो अब उनको क्या चाहिए थी, रिफॉर्म, एवरीथिंग, हर किसी को सुधार की गुंजाइश थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूल कर रही थी, यह माना जा रहा था कि अब इंस्टीट्यूशंस में भी, कम्युनिस्ट पार्टी में भी सुधार होने चाहिए, क्योंकि एक तरीके से यह पार्टी धीरे धीरे अनअकाउंटेबल होगी लोगों के लिए, लोगों का ख्याल नहीं रख रही थी, लोगों की जरूरतों का ख्याल नहीं रखना। और अगर लोग ब्यूरोक्रेट्स के पास जा रहे थे तो उनका वही है कि ठीक है, थोड़ा बहुत करप्शन बढ़ गया था, वो अपने तरीके से काम कर रहे थे, तो लोगों को लग रहा था कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच गई। अब जो आपका सोवियत यूनियन था, सीधी सी बात ध्यान रखना, वो 15 कंट्रीज से बना हुआ था, 15 देश थे इसके अंदर, 15 रिपब्लिक्स कह दो, कंट्रीज कह दो, 15 रिपब्लिक थे। लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि रशिया प्लस 14 रिपब्लिक, तो अब हम बात करेंगे कि रशिया सबसे बड़ा था, रशिया की कैपिटल मॉस्को है, यूएसएसआर की भी मॉस्को थी, तो इसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा था। लेकिन जो 14 रिपब्लिक्स थे उनकी कल्चर अफेयर्स का कोई ध्यान नहीं रख रहा था, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था, उनकी जो भावनाएं थी, आकांक्षाएं थी, उनकी जो एस्पिरेशन थी, उनका भी ख्याल नहीं रखा गया। तो एक तरीके से अब जब उनकी आकांक्षाओं का ख्याल नहीं रखा गया, तो जो ये 14 रिपब्लिक थे ये भी यूएसएसआर के आप कह दो कि खिलाफ हो गए, और एक तरीके से कह रहे थे कि हमें यूएसएसआर नेग्लेक्ट कर रहा है, हमारे कल्चरल अफेयर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी बातें सुनी नहीं जाती। तो एक तरीके से ये भी खिलाफत हो रही थी वहां। और अब हम बात करें जी आर्म रेस की, जो दोनों के बीच में आर्म रेस थी, हथियारों की जो होड़ थी, वो कहीं ना कहीं यूएसएसआर थोड़ा बहुत मैच कर पा रहा था, लेकिन उसका खर्चा बहुत हो रहा था, बहुत ज्यादा स्पेंडिंग्स थी, स्पेंडिंग्स करके वो थोड़ा बहुत यूएसएसआर को
आर्म रेस में टक्कर दे रहा था। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बात की जाए, इन दोनों की अगर बात की जाए तो यूएसएसआर कभी भी यूएस को मैच नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमेशा ट्रांसपोर्ट में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में यूएस से हमेशा पीछे था। अब सबसे बड़ी दिक्कत वो पॉलिटिकल, कि लोग राजनीति से क्या चाहते थे, और इकोनॉमिक कि पैसा चाहिए लोगों की जरूरतें पूरी होनी चाहिए, लोगों को जो सरकार से चाहिए वो नहीं मिल रहा, और इकोनॉमी भी डूब रही है। तो इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा नहीं है, पॉलिटिकली सरकार अच्छी नहीं है, तो कभी भी ये लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशन, आकांक्षाएं कि लोग जो चाहते थे वो कभी पूरी नहीं कर पाया यूएसएसआर। अब चलो, ये तो प्रॉब्लम्स थी आर्म रेस को लेकर, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी बराबरी नहीं कर पाया। अब जी प्रॉब्लम और भी बड़ी, कब? 1979 में यूएसएसआर ने, आपको अगर मैं बताऊं कि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया 1979 में, इस सोच के साथ कि वो जल्दी से वॉर खत्म करके वापस आ जाएगा। लेकिन इस वॉर में अफगानिस्तान की मदद करने वाला यूएस, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और चाइना, इतने देश इसके साथ थे। तो ये वॉर 1979 से जो कुछ महीनों का वॉर था वो 1989 तक खिंच गया, जिसमें यूएसएसआर ने अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया इस वॉर में। तो एक तरीके से पैसा लोगों पर लगना चाहिए था, लेकिन यूएसएसआर इकोनॉमिक एस्पिरेशन इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा क्योंकि वो ज्यादातर हथियार बनाने में पैसा खर्च कर रहा है और वॉर लड़ने में पैसा खर्च कर रहा है। 1989 में मिखाइल गोर्बचेव की वजह से ही यूएसएसआर की आर्मी वापस आ पाई, नहीं तो ये बहुत लंबे समय तक युद्ध लड़ते रहते, जिसका इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब इस वजह से सिस्टम में प्रॉब्लम्स आई, और ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, पैसा नहीं है, दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ऊपर से अगर और बात करें यूएसएसआर की प्रॉब्लम्स की, कि लोगों की जो वेजेस है वो बढ़ रही हैं, कि ऑफिसर जो हैं उनकी वेजेस बढ़ रही हैं, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उतनी हो नहीं रही, क्योंकि ये ज्यादातर पैसा जो प्रोडक्शन में लोगों की ख्याल, लोगों की जरूरतों का पूरा करने में रखना चाहिए था, वो हथियारों में लगा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी भी गिरती चली गई, कंज्यूमर गुड्स नहीं बन रहे। तो एक समय पर इनके पास कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज आ गई, इवन इनको दूसरे देशों से फूड भी इंपोर्ट करना पड़ा। अब फूड भी दूसरे देश से ले रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज है जी, कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई। अब धीरे धीरे इनकी इकोनॉमी ठहर गई और एक समय पर बिल्कुल खत्म होने के कगार पर आ गई। कब? 1970s 80s की बात है ये। अब धीरे धीरे ये इकोनॉमी 1970s आते आते 1780s के बीच में बिल्कुल खत्म होने के कगार पर पहुंच गई। अब सत्ता परिवर्तन, और सत्ता में आते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। एंड अब मिखाइल गोर्बाचेव और उनके पीछे के कारण हम देखेंगे डिसइंटीग्रेशन, कि मिखाइल गोर्बाचेव, और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी डिसइंटीग्रेशन की बात, कि मिखाइल गोर्बाचेव और डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ, क्या कर पाए ये, क्या नहीं कर पाए। मिखाइल गोर्बाचेव पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं कब? 1985 में। इनके पास कमान आती है पार्टी की 1985 में, इन्हें जनरल सेक्रेटरी के पद पर बिठा दिया जाता है, पोस्ट पर। अब जैसे ये आते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारा जो सिस्टम है
उसमें रिफॉर्म्स जरूरी हैं। कि दूसरी बात ये कहता है कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा। रिफॉर्म्स करने का मकसद क्या था कि यूएसएसआर को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में और हर तरीके से यूएस से एब्रीस्ट, मतलब आगे लेके जाना, यूएस से यूएसएसआर को आगे लेके जाना। मतलब अगर वो यहां चल रहा था उसको, और यूएस यहां चल रहा है और यूएसएसआर यहां चल रहा है, हमेशा ही ऐसा था। अब उसको आगे लेके जाना है, आगे बिठाना है उसको, ठीक है। और एक तरीके से ये चाहता था जो रिलेशन है, हमारे जो रिलेशन हैं वेस्ट के साथ कभी अच्छे नहीं है, उनको नॉर्मलाइज करना है, अच्छे रिलेशंस बुनना, दोनों देशों के बीच में अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना। दो चीजें ये चाहता था, रिफॉर्म करना, यूएसएसआर को आगे लेके जाना, प्लस रिलेशंस में भी नॉर्मलाइजेशन लाना, जो इतने तनावपूर्ण रिलेशन थे। लेकिन अब सोवियत यूनियन के जो लोग थे उन्होंने इस चीज को नहीं देखा था कि इसके जो रिफॉर्म्स होंगे उनका कितना प्रभाव हो रहा, कितनी जल्दी प्रभाव होगा, क्या प्रभाव होगा। किसी ने जाना भी नहीं था उस प्रभाव को, किसी को पता भी नहीं था कि कितना प्रभाव होगा और कैसा प्रभाव होगा। अब क्या हुआ, इसके रिफॉर्म्स की बात भी है और रिफॉर्म्स ये करना चाहता था, यूएसएसआर को अच्छी जगह ले जाना चाहता था। ऊपर से प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो हैं जी, मैं 3 कंट्रीज के नाम लूंगा, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 कंट्री हैं, ELL। ये जो कंट्रीज थे ये सबसे पहले यूएसएसआर से अलग हुए थे, क्योंकि अब ईस्ट यूरोपियन जो भी कंट्रीज हैं वो ये कह रहे थे, अपनी सरकारों पर अंगुली उठा रहे थे ये देश, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ये हमेशा ये कहते थे कि हम गरीब देशों के साथ क्यों हैं, क्योंकि यूएसएसआर इतना अच्छा भी नहीं है, इतनी अच्छी इकोनॉमी भी नहीं है, उसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो इन्होंने, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने अपने देश की कम्युनिस्ट सरकारों के खिलाफ विरोध करना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि पहले था, जब गोर्बचेव के पास, मिखाइल गोर्बचेव के पास सत्ता आई, तो उसने जो प्रॉब्लम्स हो रही थी उनमें कभी दखलंदाजी नहीं दी, उसने ध्यान भी नहीं दिया कि यूएसएसआर किन समस्याओं से गुजर रहा है, क्या समस्या है और इन समस्याओं का क्या हल हो सकता है। इसने कभी भी उन चीजों में दखलंदाजी नहीं दी, इसलिए जो यूएसएसआर है उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। अब जब इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, इतने ज्यादा विकास हो रहे थे, ठीक है, और इतने ज्यादा क्राइसिस थी, क्राइसिस देख लीजिए, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हमेशा डिमांड कर रहे थे, दूसरे देश भी कह रहे थे कि हमें हमारे हिस्से का पावर नहीं मिल रही, या जो रशिया था, रशिया को सब कुछ दिया जा रहा था, जो दूसरे 14 रिपब्लिक थे उनकी कल्चर को भी मान्यता नहीं दी जा रही थी, उनको बराबरी का हक नहीं दिया जा रहा था। तो इतने ज्यादा जो क्राइसिस हो रहे थे, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, गोर्बचेव ने ये चीज देखी कि क्यों ना मैं रिफॉर्म्स कर दूं ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो जाएंगी, कि रिफॉर्म्स होने की वजह से शायद तक जो यूएसएसआर है, जो डिसइंटीग्रेशन के कगार पर बैठा है, वो सही हो जाए। इवन इसने डेमोक्रेटाइजेशन की भी बात की कि डेमोक्रेसी आएगी, सरकार लोग चुनेंगे, क्योंकि इसने जो 2 रिफॉर्म किए थे, हमेशा याद रखना, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट नाम के 2 रिफॉर्म से, इस रिफॉर्म को अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग, इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर और पॉलिटिक्स को रीस्ट्रक्चर करना चाहता था ये, कि हर किसी को पॉलिटिक्स में आने का, सवाल पूछने का, अच्छी पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमी को उस तरीके से बनाने का जिससे देश को फायदा हो। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग की बात करते थे।
और इसमें जी कहते थे ओपननेस देना, इतनी ओपननेस देना कि लोग आके सरकार से सवाल पूछ पाए, सरकार से जान पाए कि क्या चल रहा है, देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है। तो इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग की बात, पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग की बात, फिर ओपननेस की बात, फिर डेमोक्रेसी, मतलब ओपननेस आएगी तो डेमोक्रेसी आएगी। जब ये चीजें चल रही थी तो सबको ये पता था कि अगर मिखाइल गोर्बचेव इन रिफॉर्म्स को कर देता है तो पार्टी के जो हार्ड लाइनर हैं, पार्टी के जो बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता जिनको हम हार्ड लाइनर कहते हैं जी, अब पार्टी के बड़े नेताओं को ये चीज अखरी नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर ये रिफॉर्म्स हो जाते हैं तो सबसे बड़ी बात, प्रिविलेज उनके हाथ से छिन जाएंगे और वो आम नागरिक बन जाएंगे। इसलिए 1991 में पार्टी के जो बड़े नेता थे उन्होंने गोर्बचेव के खिलाफ कूप प्लान किया। कूप होता है जी, कूप, तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब सरकार को पलटने का पूरा उनका विचार था कि अगर गोर्बचेव सत्ता से चला जाए, अगर गोर्बचेव सत्ता से चला जाता है तो एक तरीके से उनके हाथ में सत्ता आ जाएगी, तो वो सारी चीजें ज्यों की त्यों कर देंगे। लेकिन लोगों को भी ये पता था कि डेमोक्रेटाइजेशन आएगा, फ्रीडम आएगी, उन्हें और ज्यादा आजादियां मिलेगी। तो वो जो पुराना सिस्टम था पहले का, गोर्बचेव से पहले का, उसमें लोग जाना नहीं चाहते थे। तो लोग चाहते थे कि जो ये हो रहा है वही होना चाहिए, वैसा ही चलना चाहिए। अब क्या हुआ, लोग तो यही चाहते थे कि डेमोक्रेटाइजेशन आए, ये रिफॉर्म्स आ जाएं जिससे और ज्यादा स्थिति सुधर जाए। अब पार्टी के एक नेता थे बोरिस येल्त्सिन, जो पहले प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। अब बोरिस येल्त्सिन जो थे, उन्होंने क्या किया, जो गोर्बचेव के खिलाफ तख्ता पलट की बात हो रही थी उसका विरोध किया। ये उसका विरोध करके, मतलब ये लोगों के जो नजरें हैं उनमें एक बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता था कि मैं तख्ता पलट नहीं चाहता। अब ये तख्ता पलट नहीं चाहता था, लेकिन हां, ये जो रशिया की सत्ता है अपने हाथ में लेना चाहता था। ये रशिया की जो सत्ता थी उसको अपने हाथ में लेने के लिए इसने गोर्बचेव का साथ दिया और धीरे धीरे ये रशिया की सत्ता पर बैठ गया और इसने कम्युनिस्ट पार्टी को वहां से बैठकर चुनौती पेश करनी स्टार्ट कर दी। इसने उनकी जो सेंट्रल पावर थी, क्योंकि मॉस्को से सारी पावर चलती थी, सेंट्रल पावर पूरी मॉस्को के पास थी पावर, और यूएसएसआर का मेन हेडक्वार्टर ये था। तो मॉस्को को चेतावनियां देनी स्टार्ट कर दी और उसकी पावर को हिला दिया और एक तरीके से अपने हाथ में रशिया की सत्ता ले ली। तो बोरिस येल्त्सिन जैसे ही रशिया यूएसएसआर से अलग हुआ, पहला प्रेसिडेंट बना रशिया का। रशिया के पहले प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये किसके साथ, मिखाइल गोर्बचेव के साथ भी थे। उनका विश्वास भी जीतना चाहते थे, लेकिन सत्ता में भी आना चाहते थे। अब धीरे धीरे दूसरे जो देश थे उन्होंने भी यूएसएसआर के जो पावर है उसको चुनौती देनी स्टार्ट कर दी। वो भी इस देश से अलग होना चाहते थे और अपनी खुद की सरकारें बनाना चाहते थे। और इसमें सबसे बड़ा बात थी जो थी जी यूरोपनाइज्ड पार्ट, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वो कह रहे थे कि अब हम यूएसएसआर के साथ नहीं रह सकते, और एक तरीके से उन्होंने अपने आप को आजाद देश करार दे दिया और अपनी आजादी अपने तरीके से चलाना चाहते थे। अपनी सरकारें इनके दबाव में नहीं, यूएसएसआर के दबाव में नहीं बनाना चाहते थे, अपने तरीके से अपनी सरकारें बनाना चाहते थे। लेकिन अब कहानी आती है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अलग हो रहे हैं, रशिया भी अलग होना चाहता है, लेकिन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो थे जी 5,
आपके आगे मैप भी है, शॉक थेरेपी वाला अगर आप टॉपिक देखेंगे उसके अंदर मैप भी है। मैं आपको देश के नाम बता देता हूं, TTKKU। अब देखिए, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 जो देश थे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, जो निहायत ही मैं कह दूं कि सबसे गरीब देश थे ये यूएसएसआर के साथ थे, और इन्हें ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज का फायदा होता था। तो ये जो 5 देश थे ये कभी भी यूएसएसआर से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि इन्हें पता था यूएसएसआर इन्हें कुछ ना कुछ फायदा तो पहुंचाएगा। ठीक है। अब दिसंबर 1991, जिस दिन यूएसएसआर 15 पार्ट में टूट गया था, और दिसंबर 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव लास्ट प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन किया था। 25 दिसंबर 1991, दिसंबर 1991 में यूएसएसआर टूटा। अब येल्त्सिन जो थे उनकी लीडरशिप के अंडर रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये जो 3 अरब, ये 3 कंट्रीज जो हैं, इन्होंने बोल दिया कि आज से हम सोवियत यूनियन से अलग हो रहे हैं और हमारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर से आज के बाद हमारा कोई नाता नहीं है। मतलब बोरिस येल्त्सिन जैसी रशिया के लीडर बने, उन्होंने रशिया को सोवियत यूनियन से अलग कर लिया, और यूक्रेन और बेलारूस ने भी ये बोल दिया कि आज से हम यूएसएसआर का पार्ट नहीं है, तो हम एक आजाद देश हैं। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी को भी बैन कर दिया, सोवियत यूनियन के हर तरीके के अफेयर्स को बैन कर दिया। इवन इन्होंने कैपिटलिज्म, कुछ हद तक कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अपना लिया। सो स्टूडेंट्स, ये जो यहां तक जो मैंने आपको बताया, ये एक तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ता में आने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए और किस तरीके से जो आपका डिसइंटीग्रेशन के स्टेप्स हुए, और किस तरीके से मिखाइल गोर्बाचेव आप कह दो कि रिफॉर्म्स करना चाहते थे। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। नेक्स्ट जो हम वीडियो होगी उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।